Hello everyone, this is Manoj Chaudhary and this video will give you an introduction to Java programming language. The concept जो हम लोग यहाँ पे cover करने वाले हैं during this entire session will be Java history, Java usage, why do we use Java why to use Java and the Java features. The history of Java programming language is indeed very interesting. So it is one of the popular programming language as we use today. And it was created in the year 1991, and the top person who were among this leading of project were James Gosling, Mike Sheridan, and Patrick Nocton. During the year 1991, as I said, this programming language was created, but in the year 1996, Sun Microsystem released its first public implementation of Java as version Java 1.0. So Java को Java क्यों बोला जाए? Why do we call Java as Java? It could be anything. Initially, this programming language was given a name as Oak programming language, but टीम ने डिसाइड किया कि इसको कुछ नाम चेंज किया जाए. And everyone suggested new words like Silk, Jolt, Revolutionary, DA, Dynamics, DNA, etc. etc. The aim behind choosing some new name was they wanted a name that could be easy to spell as well as funny to say, and also the word which they were choosing should reflect the technology they invented, the technology, the programming language they invented. It should reflect that technology. So in accordance to James Gosling, Java was one of the top name which was on the list, and since it was a unique name, it was preferred to use for. जावा जो है वो एक आइलैंड का भी नाम है जो एक इंडोनेशिया में, और जहाँ पे जावा कॉफ़ी विच वॉज फर्स्टली प्रोड्यूस, इसीलिए भी ये वर्ड अपने आप में यूनिक रखता है. जेम्स गॉसलिंग ही वॉज वंस ड्रिंकिंग अ कॉफ़ी नियर बाई हिज ऑफिस, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग द ड्रिंकिंग time of his coffee, the word Java struck his mind. एक बात और जावा के बारे में जो ध्यान देनी चाहिए कि जावा जो है इट इज़ नॉट एन एक्रोनिम, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है. बहुत सारे लोग जो है वो दे मिसकंसिडर टू गेट अ वी कैन से फुल फॉर्म ऑफ जावा. कमिंग टू वेयर जावा इज़ यूज्ड फॉर. Java जो है it is used in developing of mobile applications, especially Android applications. Then desktop applications हो गए, web applications, web servers, application servers हो जाते हैं. Then games and database connectivity में Java use किया जाता है. So why to use Java? Java जो है platform independent programming language है. It can work on Windows, it can work on Mac OS, Linux, Unix, Solaris, etc. operating systems. It is one of the most popular programming language in the world. It is easy to learn and simple to use, and that's the main reason we should use Java. It is open source and freely available. It can be downloaded from its official site, as we will see in the next forthcoming videos. It is secure, it is fast, and it is powerful. How is it secure? Secure कैसे? ये fast कैसे? ये हम लोग आगे आने वाले slides में check करते हैं. It has a huge community support. Nearly about 3 billion users use Java. Till yet, 3 billion users Java users है overall around the world, around the globe. And conversion देखा जाए तो 300 करोड़ users हैं. So हमें कहीं पे भी कुछ भी डाउट आए किसी भी प्रोग्राम कोड में, we can take help from that huge community. It is a great benefit and the main reason behind using Java. Java जो है it is an object oriented programming language, and hence ये हमें बहुत हेल्प करने वाला है. As Java, it is close to C++, it is close to C#, and hence it is easier for the developer to switch to Java, क्योंकि सेम कंसेप्ट है. हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि अगर सेम होता तो फिर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. Coming to the features of Java, the primary objective of Java programming language creation, क्यों क्रिएट किया गया था, वो ये था कि इसमें पोर्टेबिलिटी लेके आया जाए, इसे सिंपल रखा जाए, एंड इसे सिक्योर प्रोग्रामिंग बनाया जाए. ठीक, इससे पहले कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सिक्योर नहीं थे. क्यों, वो हमें आने वाले स्लाइड्स पे चेक करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सम ऑल्सो एक्सेलेंट फीचर्स विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एक लिस्ट देख लिया जाए एंड देन एक एक करके इनको हम लोग आगे चेक करते हैं. दो फीचर्स ऑफ जावा में आ जाता है उसका सिंप्लिसिटी, उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स, पोर्टेबिलिटी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट.
secure, robust, architecture neutral. Okay, this is one of the main feature and interesting feature भी होने वाला है. Okay, interpreted, high performance, then multi-threaded, distributed, and dynamics. So let's get to each and every feature one by one. Coming to the first feature, which is simple. Java जो है, it is an easy to learn language. Okay, and the syntax is very simple, clean, and easy to understand. Okay, कोई भी नॉन IT बंदा जो अगर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहता है, दे कैन ऑल्सो लर्न दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, बिकॉज यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स यूज़ होने वाले, दीज आर ऑल इन द इंग्लिश लैंग्वेज जो हम लोग आजकल बोलते भी हैं, एंड इंग्लिश में है, सो ईजी टू अंडरस्टैंड है. अकॉर्डिंग टू सन माइक्रो सिस्टम, जावा लैंग्वेज जो है सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्यों? क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है वो बेस्ड है C++ के लिए. सो जो प्रोग्रामर पहले C++ सीख चुके हैं उनके लिए ईजी हो जाता है इसको अडेप्ट करना. जावा हैज़ रिमूव मैनी कॉम्प्लिकेटेड एंड रेयरली यूज फीचर, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लिसिट पॉइंटर एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है ये कंसेप्ट था C++ में, एंड हालांकि एक अच्छा फीचर हो सकता है, लेकिन इट वाज रेयरली यूज फीचर. एंड पॉइंटर जो है इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फीचर. सो इन दोनों को या फिर इनके जैसे ही बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं जिन्हें जावा में रिमूव कर दिया गया. अब पॉइंटर्स को क्यों रिमूव किया गया ये आगे आने वाली स्लाइड्स में हमें सिक्योर सेक्शन में पता चल जाएगा. लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है वो अभी हम लोग चेक करते हैं. ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, देन division and modulus to get the remainder of any solution. ओके, इनका अपना अपना एक मीनिंग होता है. प्लस अगर हम लोग यूज़ करेंगे, इफ़ यू एडिशन ऑपरेटर, देन वो दो नंबर्स को ऐड करेगा. अगर हम लोग उसे स्ट्रिंग के ऊपर यूज़ करेंगे तो देन कॉन्कैटिनेट करेगा. इट मीन्स उसका एक अपना ही फीचर है. प्लस करेंगे तो एडिशन ही करने वाला एक तरीके से. लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है? वी कैन चेंज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर. कोई भी ऑपरेटर हो, इट इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल ऑन अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रैदर कोई भी ऑपरेटर वहाँ पे आ जाए. तो अगर हम लोग प्लस का मीनिंग चेंज करके उसे करवाना चाहते हैं इनटू एडिशन, तो है ही वो, सॉरी एडिशन तो है, एंड अगर उसे हम लोग चेंज करवाना चाहते हैं टू मल्टीप्लिकेशन, तो वो प्लस सिंबल भी मल्टीप्लिकेशन का काम कर सकता है. दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग. इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन हाउ टू यूज़ द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हालांकि वो हम लोग जावा में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कोई तो C++ में अगर आपको उसका वीडियो चाहिए कि हाउ टू यूज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हम लोग उस पर कवर करेंगे. कमेंट इन द सेक्शन. ओके, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, पॉइंटर्स जो है एज ए से विल कवर इन द सिक्योर सेक्शन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, देयर इज़ नो नीड टू रिमूव अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट बिकॉज जावा जो है वो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर यूज़ करता है टू रिमूव अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट यूज़ में नहीं है, जो कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहे एंड बिना मतलब कि मेमोरी खा रहे हैं, उन्हें जावा ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर अपने आप रिमूव कर देता है. कमिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर, एज यू ऑल नो, C++ में आपने शायद पढ़ा होगा ये. देन जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जावा में हर चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है. एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फीचर्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, देन एनकैप्सुलेशन. देन जावा जो है इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. इंडिपेंडेंट मीन्स द कोड विच कैन बी रन ऑन द Windows operating system can be easily run on the any another operating system. तो चाहे वो विंडोज़ पे रन करें या सेम कोड हम लोग लिनक्स पे रन करें, सोलारिस हो गया, मैक ओएस हो गया, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे रन करें तो वो इजीली रन हो जाएगा. बिकॉज जावा जो है वो आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म है. ठीक, जावा जो है आपको एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म है मतलब उसको सिर्फ हार्डवेयर चाहिए रन होने के लिए, उससे अलग कुछ नहीं. C++ की बात की जाए तो, या सी की बात की जाए तो उसे अपने आप में टर्बो सी जैसा एक सॉफ्टवेयर चाहिए रहेगा. एंड वही सेम चीज़ अगर हम लोग कोई दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे रन करेंगे तो थोड़ा डिफर हो जाता है. नॉट ऑन द डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑन द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो लेकिन जावा के लिए ऐसा नहीं है. इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. ओके, अब ये क्यों होता है? इसमें होता है कंसेप्ट विच वी कॉल एज बाइट कोड, जो कि आगे आने वाला है. तो जावा कोड एक बहुत अच्छा फीचर जावा कोड का ये है, इट हैज़ अ फीचर कॉल्ड एज वोरा, WORA, राइट वंस रन एनीवेयर. तो हिंदी में बोला जाए तो एक ही बार लिखो एंड उसे कहीं पे भी कितने भी बार
कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली रन कर दो। ओके, नाउ जावा इज़ अ सिक्योर लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं है, ये खुद का वर्चुअल मशीन यूज़ करता है, क्लास लोडर है इसमें, बाइट कोड वेरीफायर है, सिक्योरिटी मैनेजर है। एंड इनके अलावा भी अगर हम इनसे कोई दूसरा फीचर लाइक SSL हो गया, देन जावा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सर्विस विच इन शॉर्ट वी कॉल एज जैस, JAAS, वो है, वो हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं या ओके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नॉट इंस्टॉल, वी कैन इम्प्लीमेंट। एंड क्रिप्टोग्राफी वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। अब एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं मीन्स जावा में पॉइंटर का कंसेप्ट अवॉइड कर दिया गया है विच वॉज यूज इन द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा में ये नहीं है। पॉइंटर का कंसेप्ट क्या था? पॉइंटर के थ्रू हम लोग मेमोरी को एक्सेस कर सकते थे। मेमोरी को एक्सेस मिला मीन्स मेमोरी में जो मेमोरी एड्रेस में एक्सेस मिला मीन्स हमें उस मेमोरी का जो डेटा है उसे एक्सेस मिला। तो ये एक बहुत ड्रॉबैक था। अगर किसी हैकर को पर्टिकुलर मेमोरी का एक्सेस मिल गया तो वहाँ से वो डेटा उठा लेगा। एंड अगर वहाँ पे कुछ क्रिटिकल डेटा हुआ, कुछ प्राइवेट या फिर इंपॉर्टेंट डेटा हुआ, देन इट कैन बी अ ग्रेट इशू। जावा का खुद का वर्चुअल मशीन है विच वी कॉल एज जावा वर्चुअल मशीन, जहाँ पे वो अपने प्रोग्राम्स को उसके अंदर ही रन करता है। तो खुद का वर्चुअल मशीन है। देन एक तरीके से बेनिफिट ये हुआ कि उसे उन प्रोग्राम को रन करने के लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने वर्चुअल मशीन के अंदर रन करेगा, कोड प्रोड्यूस करेगा, एंड जो भी कोड प्रोड्यूस करेगा उसे आउटपुट प्रोड्यूस करके दे देगा। This whole concept will be regarding the Java virtual machine will be covered in the later section. Okay, now Java has a class loader. Class loader in Java is a part of Java runtime environment, which we in short call as JRE, and it is used to load Java classes into Java virtual machine dynamically. Okay, dynamically आपका जावा जो क्लास लोडर होता है वो आपका ऐसे समझो, जावा जो है वो अपने फाइल को कन्वर्ट करता है इनटू क्लास फाइल। अब वो क्लास फाइल लोड होता है आपके जावा वर्चुअल मशीन में एंड वो रन होता है। ठीक, क्लास फाइल रन होगा एंड देन आपका आउटपुट प्रोड्यूस होगा। इसलिए वहाँ पे क्लास लोडर की ज़रूरत है जो एक टास्क कर दे कि क्लास फाइल को JVM में या फिर जावा वर्चुअल मशीन में लोड करता है डायनेमिकली। आपको नहीं करना पड़ता, ये सब टास्क अपने आप बैकग्राउंड में हो जाता है। Okay, then bytecode verifier, so it will check for the code fragment for illegal code that can violate the access right to any object. अगर कुछ illegal code है और ऑब्जेक्ट को कुछ एक्सेस राइट को वायलेशन वहाँ पे हो रहा है तो ये वेरीफाई करने का काम आपके बाइट कोड वेरीफायर का है। एंड फाइनली सिक्योरिटी मैनेजर होगा जो ये चेक करेगा कि ये डिटरमाइन करेगा कि रिसोर्सेज ऑफ अ क्लास कैन एक्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक रीडिंग और राइटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर फाइल ऑन द लोकल डिस्क। एंड एज आई सेड, इसके अलावा अगर आपको SSL, जैस और क्रिप्टोग्राफी इंप्लीमेंट करना है, दिस फीचर कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड। एंड रॉबस्ट, द बेसिक मीनिंग, ओके इट इज़ नॉट माइनिंग, इट इज़ मीनिंग, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। बेसिक मीनिंग ऑफ रॉबस्ट इन इंग्लिश इज़ स्ट्रॉन्ग। जावा स्ट्रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि इसमें मेमोरी मैनेजमेंट जो है स्ट्रांगली किया जाता है, बहुत स्ट्रिक्टली किया जाता है। यहाँ पे लैक ऑफ पॉइंटर है, एज ए सेड सिक्योरिटी इशू नहीं है। गार्बेज कलेक्टर है, तो हमें ऑब्जेक्ट्स जो अनयूज होंगे, जो स्लैक स्पेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अवॉइड हो जाएंगे। स्लैक स्पेस क्या होता है, दैट विल कवर इन द कमिंग वीडियोस। एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग का फीचर है, टाइप चेकिंग का फीचर है, एंड इनकी वजह से जावा जो है रॉबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आर्किटेक्चरल या फिर आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। इट मीन्स जावा जो है ये आपके इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर वो 32 बिट है या 64 बिट है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे जाएंगे। सी प्रोग्रामिंग जो है, अगर आप उसे रन करोगे तो उसमें जो इंटीजर डेटा टाइप होएगा वो 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा इन 32 बिट आर्किटेक्चर। लेकिन अगर आप उसे इंस्टॉल करोगे ऑन 64 बिट आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो वही इंटीजर डेटा टाइप विल कंज्यूम 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो इतना भेदभाव क्यों भाई? तो जावा जो है ये it is not discriminating based on the architecture of your operating system और platform। तो डजेंट मैटर कि आप 32 बिट का यूज़ कर रहे हो या 64 बिट का यूज़ कर रहे हो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, देन जावा जो है इट विल ओनली ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, चाहे 32 बिट पे इंस्टॉल करो या 64 बिट पे आप इंस्टॉल करो। और ये 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीजर डेटा टाइप। पोर्टेबल है, जावा एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मीनिंग क्या होता है? पोर्टेबल का मीनिंग है जो हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी कर सके। एज आई सेड, जावा जो है वो प्रोग्राम को रन करके उसे कन्वर्ट करता है इनटू योर बाइट कोड्स। एंड ये बाइट कोड अगर हम लोग एग्जांपल के लिए लेते हैं,
अगर आप एक जावा प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसमें उसे कंपाइल करके उसका जो बाइट कोड है वो आप कर रहे थे पहले विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे कन्वर्ट किया हुआ बाइट कोड लिनक्स पे लाके रन करोगे, देन ऑल्सो दैट पर्टिकुलर बाइट कोड विल रन डेफिनेटली ऑन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा नहीं है कि विंडोज़ पे किया है वो बाइट कोड बना है तो अगर आप लिनक्स पर रन करोगे तो नहीं होगा, नहीं डेफिनेटली रन होगा। क्यों? क्योंकि जावा पोर्टेबल है एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मीनिंग यही है कि कहीं पे भी करो और उसे कोई दूसरे लैंग्वेज पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके रन कर दो। सो इट बेसिकली डज नॉट रिक्वायर एनी रिक्वायरमेंट और एनी इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस। इतने सारे फीचर देखने के बाद ऑफकोर्स है कि जावा जो है इट इज़ अ हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स जावा इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज ये फैसिलिटेट करता है, प्रोवाइड करता है यूज़र को कि डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन बना लो। एक एप्लीकेशन एक पीसी पे बनाओ, एक एप्लीकेशन दूसरे पीसी पे बनाओ एंड रिमोटली उनको इन्वोक किया जाता है। RMI स्टैंड्स फॉर रिमोट मेथड इन्वोकेशन है, AJB एंटरप्राइज जावा बीन। तो इनके थ्रू हम लोग बना सकते हैं एंड अगर इन्वोक करना है तो एक पीसी से हम लोग दूसरे पीसी को कॉल करेंगे, एक मशीन से दूसरे मशीन पे कॉल करेंगे। बस एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर उनके बीच इंटरनेट कनेक्शन है तभी ये फीचर रन होगा। इंटरनेट कनेक्शन नहीं है देन दिस फीचर कैन नॉट बी एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल। This particular feature of Java make us able to access the files by calling the method from one machine on the internet to any other machine. मल्टी-थ्रेडेड फीचर है जावा में। मल्टी-थ्रेडेड फीचर इज़ मस्ट। ये बहुत अच्छा फीचर है जो जावा ने दिया है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आप एक गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो, ठीक। गूगल क्रोम में जब आप यूज़ करो तो वी विल कंसिडर कि जैसे आपने गूगल क्रोम ओपन किया तो आपका एक ब्लैंक टैब आता है एंड जैसे ही आपने ओपन किया तो वो 2 MB ऑफ रैम आपका कंज्यूम कर रहा है। तो 2 MB ऑफ रैम कंज्यूम किया एंड जब आपने वहाँ पे दूसरा टैब ओपन किया, पहला टैब क्लोज किए बिना तो 1-2 टैब और ओपन कर लिया तो टोटल आपके पास 3 या 4 टैब ओपन हो जाएंगे। तो ये हो जाता है आपका फीचर ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। एक ही एप्लीकेशन के अंदर आप बहुत ज़्यादा फीचर्स यूज़ कर रहे हो। लाइक एक ही गूगल क्रोम के अंदर आप बहुत ज़्यादा टैब क्रिएट करके बहुत ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल करवा रहे हो, लेकिन जो आपका कंजम्पशन है मेमोरी का वो उतना ही रहने वाला है। हालांकि आपने थ्रेड क्रिएट किया लेकिन उससे आपके मेमोरी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, जस्ट इन दिस पर्टिकुलर वे जावा जो है वो भी मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मल्टी थ्रेडेड है मीन्स आपका जो बहुत सारे टास्क को एक तरीके से कंबाइन कर सकता है वाया सम थ्रेड, वाया सम लिंक एंड उनको कॉमनली रन कर सकते हैं हम लोग। डायनेमिक जावा इट इज़ अ डायनेमिक लैंग्वेज। इट विल सपोर्ट डायनेमिक लोडिंग ऑफ क्लास। आपको लोड नहीं करना पड़ता, वो अपने आप कर देता है इनटू द वर्चुअल मशीन एंड इट मीन्स क्लासेस आर लोडेड ऑन डिमांड। सब डिमांड पे ही होता है। डायनेमिक के मीन्स इट ऑल्सो सपोर्ट्स फंक्शन फ्रॉम द इट्स नेटिव लैंग्वेज दैट इज C एंड C++। तो सी ऐसा नहीं है कि C और C++ के सभी फीचर्स यहाँ से हटा दिए गए, वो फीचर्स भी रखे गए हैं लेकिन कुछ को रिमूव किया है एंड उनकी जगह कुछ नए फीचर्स को यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप यू एंजॉय दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ yes, give it a thumbs up and do like, share and subscribe this channel.